Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is general rules for test construction. It's the second topic of chapter number 4, that is general rules for test construction. This slide I taken from your outline. These are the outcomes for this topic. Now we are properly starting our lecture. To be able to prepare a good test, one has to have a mastery of the subject matter, knowledge of the pupils to be tested, skill in verbal expressions, and the use of the different test formats. This saying is for the teachers. Teaching is not an intentional activity, but it is a deliberate effort to achieve desired goals. It is a well-planned process to affect individuals' current level of knowledge, skills, and attitudes. The purpose of all endeavors is to enable the students to satisfy their needs. So effective teaching is not a matter of urge, but good teachers know what changes in student behavior they want to produce and hold them accountable by modifying strategies until objectives have been met. In practice, teaching not only involves setting objectives that consider students' need and background and selecting the most effective instructional strategies, but also measuring the level of attainment of objectives determined by the teachers, since many objectives and teaching strategies are not static and unchanging. The process of goal setting and trying out new strategies is never-ending process. What is classroom testing? A classroom test consists of a collection of items that are designed to measure and evaluate a learner's skills, knowledge, general performances, or other capabilities as they relate to the content and lesson objectives that are covered as part of the instructional process. A classroom test serves as a formal assessment of the student's accomplishment of the intended learning objectives. This work is usually graded and evaluated according to set procedures and or scales within the school district. What is summative assessment? Summative assessment, whether they are end of lesson test, performance checklist, or classroom projects, are used to measure and evaluate student learning progress in the classroom. They serve a critical role in the assessment of learning, where every student's accumulated progress can be measured and documented. Generating effective summative assessment is essential as teachers bear responsibility for the construction and administration of the assessment used to directly measure learning gains. The summative test is The summative test is given at the end of a course or unit of instruction, and the results are used primarily for assigning grades or certifying pupils' mastery of the instructional objectives. The results can also be used for evaluating the effectiveness of the instruction. The final examination is typically a non-reference survey test that is broad in coverage and includes test items with a wide range of difficulty. The more restricted end of unit summative test might be norm reference or criterion reference depending on whether mastery or developmental outcomes are the focus of instruction. As you all know that this chapter is related to the test construction rules. So here I simply try to give you an outlook of summative assessment, because finally for the summative assessment and for the cumulative records, teachers try to maintain their exams, their tests. So for that purpose, I simply introduce you and try to review you the summative assessment. Planning your test. Now from here we are properly starting our topic. Planning, when putting together a summative measure, usually a test, it is essential to plan out and organize the test before it is administered. As you construct the test framework and decide on the items that make the test, it is important to confirm and check off
that basic assessment actions have taken place during the test construction process. Planning refers to a process of setting goals, developing strategies, and outlining tasks and schedules to accomplish the goals. It is observed that the more time we spend on constructing the test and the accompanying score procedures, the less time it will take to score the test. Also, the more time spent in planning, the more confidence we will have that our assessment of the student was done using understandable and defensible criteria. In this regard, classroom test includes determining the purpose of testing, developing the test specification, selection of appropriate item types, and preparing relevant test items. Our coming two lectures are regarding to these four steps. General test construction rules. Now, what are basically general construction rules of our test? First of all, good test construction practices reflect the use of sound measurement practices along with good common sense. A teacher should have good common sense so he can understand what type of test or test practices he wants from the student and what he wants to measure from the student's outcomes. A test should involve the careful considerations and selection of various items and questions. Obviously, when a teacher decides what he wants to take as a test, he will make a list of those items which he wants to include in the test. Test development. Regardless of what items are used in a test, the following rules should be considered. Ensure proper item coverage based on specific goals and outcomes. Secondly, complete a table of specification to determine the knowledge and cognition progress level and skill covered with the test. Include a listing of what test items are covering specific knowledge and cognitive levels. मतलब जैसे ही टीचर एक टेस्ट डेवलपमेंट का प्रोसीजर स्टार्ट करेगा, सबसे पहले वो अपने स्पेसिफिक गोल्स को आइडेंटिफाई करेगा और वो देखेगा कि उसने एक जो टॉपिक्स बच्चों को पढ़ाए हैं उसमें उसके स्पेसिफिक गोल्स क्या थे, उन गोल्स को मद्देनजर रखते हुए उसने कौन सी चीज़ें कौन से टॉपिक्स बच्चों को कवर करवाए हैं और उनके मुताबिक बच्चों की आउटकम्स क्या रही हैं. देन वो अपना टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन बनाएगा. सेकेंड नंबर पे वो अपना ब्लूप्रिंट तैयार करेगा. उसमें वो ये देखेगा कि वो एक बच्चे के कॉग्निटिव लेवल में से कौन कौन सी स्किल्स को चेक करना चाहता है. इंक्लूडिंग अ लिस्टिंग ऑफ व्हाट टेस्ट आइटम्स आर कवरिंग स्पेसिफिक नॉलेज एंड कॉग्निटिव लेवल्स, और वो यहाँ पे उन चीज़ों की लिस्टिंग कर देगा जिन चीज़ों को एज अ कॉग्निटिव एंड स्पेसिफिक नॉलेज के तौर पे वो देखना चाहता है कि बच्चे ये चीज़ें कवर कर चुके हैं. All test items should be clear and concise but complete and fully understandable. जो भी आप एक आइटम इंक्लूड करते हैं टेस्ट के अंदर, चाहे वो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, चाहे वो आपके लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, ऐसे टाइप हैं, या आप एमसीक्यूज बना रहे हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस के साथ साथ अगर आप फिल इन द ब्लैंक्स या मैचिंग आइटम्स बना रहे हैं, तो सबसे पहले जो भी आप उसके अंदर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी इजी, क्लियर, कंसाइज और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक होनी चाहिए. अ वैरायटी ऑफ टेस्ट item types should be considered and incorporate within a test. एक ही तरह के क्वेश्चन बच्चों को देने की बजाय डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन को पेपर में शामिल करके मिस एंड मैच किया जाए. This helps eliminate any construction bias favoring a specific response type. For example, if all or most of the tests are essay questions, that would favor students who have confidence with this type of questions and possess strong writing skills. एक ऐसा पेपर जिसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप को निगलेक्ट करेंगे, इसका मतलब है कि आप इंडिविजुअल डिफरेंसेस को निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि हर बच्चे की राइटिंग एबिलिटी स्ट्रांग नहीं होती. तो स्टूडेंट्स की राइटिंग एबिलिटीज और उनकी ऑब्जेक्टिविटी को मद्देनजर रखते हुए जब भी हम पेपर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो उसमें हम हर दो तरह की आइटम्स को पेपर में इंक्लूड करेंगे, जिनमें कुछ आइटम्स अप्लाई टाइप होंगी और कुछ आइटम्स सिलेक्शन टाइप होंगी. Clear and understandable directions need to be provided at the beginning of the test. टेस्ट के स्टार्ट में आप वो सब डायरेक्शन स्टूडेंट को देंगे जो आपकी डिमांड है, चाहे उनको आप रिटन कैपेसिटी में दें, चाहे आप उन्हें ओरल में बताएं.
एक पेपर को स्टार्ट करने से पहले उसकी टाइमिंग क्या होगी, उसकी वैल्यूज क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव के लिए कितने मिनट्स दिए जाएंगे, सब्जेक्टिव पार्ट्स के लिए कितने मिनट्स दिए जाएंगे, राइटिंग स्किल्स में किस किस्म की राइटिंग चाहिए, कौन सी ऑप्शंस को आपने लिस्ट करना है, किन चीज़ों में डिटेल्स की डिमांड की गई हैं, और उसके साथ साथ आप स्टूडेंट को क्या चीज़ें डायरेक्ट करना चाहेंगे उनकी पेपर्स के हवाले से, उनकी पेंसिल्स के हवाले से। ये सब चीज़ें एक पेपर, जो भी पेपर एलेबोरेट करवा रहा है या पेपर कंडक्ट करवा रहा है, उसे स्टूडेंट को पहले से बताना होंगी। Questions should be constructed so they reflect a clear statement or questions. Should not be designed to mislead the reader. Test questions need to accurately determine if someone knows specific information or can perform a certain skill test. क्वेश्चंस कंस्ट्रक्ट करते हुए उसके अंदर एक स्टेटमेंट और एक क्वेश्चन पूछें, एक क्वेश्चन के अंदर दो स्टेटमेंट देने से अवॉइड करें। जो भी क्वेश्चन आप पूछें उसमें आप स्टूडेंट को कंफ्यूज नहीं करें। जो भी क्वेश्चंस बच्चे से पूछे जा रहे हैं उसके अंदर उसको स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और उसका क्राइटेरिया बताएं। टेस्ट क्वेश्चन शुड नॉट बी कंस्ट्रक्टेड टू सी इफ स्टूडेंट कैन अवॉइड बीइंग फूल्ड और मिसडायरेक्टेड बाय द क्वेश्चन। मैनी टाइम्स आई सी विद मुझे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखते हुए हैरत होती है कि वो एक ऐसा पेपर सेट करते हैं जिसका मकसद ये होता है कि कोई बच्चा पेपर को पास नहीं कर सकेगा। If selected response items are used, make sure to provide appropriate and reasonable alternative responses for each questions. As you know, when we are providing selective type questions to students, then we will have to make two columns स्टूडेंट फॉर द स्टूडेंट्स, जिसमें एक के अंदर हम ए में हम क्वेश्चन पूछते हैं और बी में हम उसके आंसर सीरीज बनाते हैं और स्टूडेंट्स उनको आपस में सिलेक्ट करना होता है। For example, if a question requires a student to identify the largest planets in the solar system, then provide names of real planets and do not provide answer responses that are not related to the subject matter. उससे क्या होता है कि स्टूडेंट को क्लू मिल जाता है, ठीक है, और समटाइम्स उनको आसानी से पता चल जाता है कि ये ऑप्शंस तो इसका हिस्सा है ही नहीं, दीज ऑप्शंस आर फेक, तो वो बहुत जल्दी चीज़ों को गैस कर लेते हैं और इससे उनकी मिसलीडिंग हो जाती है। Only provide the number of questions that can be completed based on the amount of time that is available to the students. So try to make a paper appropriate with the time. Don't try to make a paper जिसमें बच्चों को हम बहुत लेंथी पेपर दें और वो बच्चे विद इन द टाइम उस क्वेश्चन को और उन पेपर्स को पूरा ना कर सकें। For majority of selected response questions are used, then less time would be required as compared to a test that possesses a considerable number of essay questions. Obviously जब हम ऐसे और कुछ उसके साथ ऑब्जेक्टिव टाइप को मिला देते हैं तो फिर हम नंबर और उनके जो मार्क्स हैं उनको मैनेज कर लेते हैं, उसमें हमारा टाइम मैनेज हो जाता है। लेकिन अगर आप 100 मार्क्स से सिर्फ 5 लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहे हैं या ऐसे टाइप पूछ रहे हैं, देन डेफिनेटली उसमें टाइम कंजम्पशन ज़्यादा होगी और ऐसा पेपर जो है वो रिमार्केबल भी नहीं है क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ बच्चे की राइटिंग एबिलिटीज को देख रहे हैं। Typically, test items required at least 1 to 2 minutes just to be read, understood, and for answers to be considered. But if you will make a statement very difficult, then obviously a student has to read it again and again, and maybe one item will consume your 5 minutes. So try to make items simple, clear, concise, and focused and short. If constructed response items have higher point values relative to other test items, then indicate that value next to each of the question. अगर आप एक 20 मार्क्स के क्वेश्चन को 3-4 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं और उसके सब पोर्शंस बना रहे हैं, तो हर पोर्शन को आपने कितना वेटेज दिया, आपको हर पोर्शन के आगे उस वेटेज को लिखना है। अगर आप डेफिनेशन 3 मार्क्स की दे रहे हैं तो उसके आगे 3 लिखें, उसके साथ अगर आप उसकी करेक्टरिस्टिक 7 मार्क्स की दे रहे हैं तो उसके आगे 7 लिखें, अगर आप उसके मेरिट 5 पूछना चाह रहे हैं तो उसके आगे 5 को लिखें, और अगर डी मेरिट्स 5 पूछना चाह रहे हैं तो उसके आगे भी आप 5 की वैल्यू लिख दें। Now the next is test implementation. Administer the test within one session as this will help to ensure fair and uniform examination conditions. टेस्ट इम्प्लीमेंटेशन में जब भी हम बच्चों का टेस्ट एडमिनिस्टर करते हैं तो कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम
एक क्लास का पेपर ले रहे हैं तो उसे दो हिस्सों में मॉर्निंग इवनिंग या फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में करने की बजाय उन सब पेपर्स को एक ही शिफ्ट में एक ही टाइम पर ले लिया जाए, क्योंकि इससे जो हमारी यूनिफॉर्मिटी रहती है और स्टूडेंट्स जो हैं उनका फोकस भी रहता है और पेपर लीक होने का खदशा भी नहीं रहता। फेयर और यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन कंडीशंस के लिए हर सेशन अगर हम लोग लाइकवाइज फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन जो है वो मास्टर्स में भी ऑफर कर रहे हैं, केमिस्ट्री में भी ऑफर कर रहे हैं, बीएसआईटी में भी ऑफर कर रहे हैं, तो जितने भी डिपार्टमेंट्स में फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का पेपर हो रहा है अगर उसे फ्राइडे को 8:30 पे रखा जाए तो उसको एक ही टाइम पे अटेम्प्ट करवा लिया जाए, बजाय इसके कि बीएसआईटी को वो पेपर मंडे को दिया जाए और बीएस मैथमेटिक्स को वो पेपर ट्यूसडे को दिया जाए और एमए वालों को वो पेपर फ्राइडे को दिया जाए। तो इससे क्या होता है, मिसलीडिंग हो जाती है। इफ मोर टाइम इज रिक्वायर्ड इट इज बेस्ट if additional time is provided immediately after class and not on a different day. Always provide adequate time for a student to complete the test or examination. बच्चे को पेपर कंप्लीट करने के लिए और अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करने के लिए इनफ टाइम देना चाहिए। कम टाइम में बच्चे बहुत हवास पाख्ता होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और वो पेपर को प्रॉपरली अटैम्प्ट नहीं कर सकते। इस वजह से बच्चों को प्रॉपरिएट टाइम दें। इफ़ देयर इज़ अ नीड तो उनका टाइम थोड़ा एक्सटेंड कर दें। ऑलवेज बी अवेलेबल टू प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन और एक्सप्लेनेशन ऑफ एन टेस्ट आइटम इफ़ नेसेसरी। ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ टीचर। अगर उसने पूरे कैंपस के लिए एक पेपर बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है, तो वो हर वक्त हर क्लास में तो अवेलेबल नहीं हो सकता। बट इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द टेस्ट कंस्ट्रक्टर और टेस्ट डेवलपर के वो हर क्लास में वन बाय वन जाए और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछे, अपने पेपर को एक दफ़ा उनके सामने रीड आउट करे, उन्हें क्लैरिफिकेशन दे, उन्हें अपनी डिमांड्स बताए कि व्हाट टाइप ऑफ आउटकम्स ही वांट फ्रॉम यू, और उसके बाद वो जिस क्लास में उसकी ड्यूटी है उसमें जाके खुद अपनी ड्यूटी कर सकता है। बट मीनवाइल अगर किसी टीचर को ज़रूरत पड़े तो ऑन कॉल एंड ऑन डिमांड टीचर को उस क्लास में जाकर स्टूडेंट को क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, उनको उन चीज़ों के बारे में प्रॉपर गाइड करना चाहिए। मेंटेन अ क्वाइट क्लासरूम एनवायरनमेंट that is free of distractions so all students can focus their attention on the demands of the test. Obviously classroom environment should be very cool, very silent, pin drop silence should be there ताकि बच्चे बहुत फोकस होकर बहुत अटेंटिवली अपने पेपर की डिमांड के मुताबिक और टीचर की डिमांड के मुताबिक पेपर को सॉल्व कर सकें। और इस तरह के एनवायरनमेंट में क्या होता है कि स्टूडेंट के लिए भी आसानी होती है और टीचर के लिए भी। लेकिन अगर दो तीन टीचर्स की ड्यूटी हो तो नॉर्मली टीचर्स आपस में बातें करते रहते हैं जिससे बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स एक दूसरे को तंग करते हैं। सो while we are implementing a test there should be a pin drop silence in the classroom. Test review. As the teacher, it is imperative to examine the collective testing performance of your student. Determine what areas or content was easy as well as what the students had difficulty understanding. आपको पेपर टेस्ट को रिव्यू करना है कि वो कौन से एरियाज हैं जिनमें स्टूडेंट को प्रॉब्लम का सामना हुआ और वो कौन से ऐसे इश्यूज थे जिनको बच्चों ने आसानी से देख लिया और उनमें उनको प्रॉब्लम नहीं हुई। Being a teacher, it is a responsibility of teacher to find out the problems of the student and try to कि next time उनको वो issues ना हो. Complete an item analysis of the test where each test item is examined relative to the number of students that passed the item, the scoring or rating frequencies that were evidence for essay questions, recording your impressions of the student responses एंड देयर जनरल परफॉर्मेंसेस। तो जब आपने एक टेस्ट में एनालिसिस देना है तो उन इन तीन चीज़ों को मद्देनजर रखना है। सबसे पहले आपने उन बच्चों को देखना है जिन्होंने एक आइटम को पास आउट किया, मतलब जैसे हम आइटम डिफिकल्टी आइटम एनालिसिस करते हैं तो उसके मुताबिक हमने देखना है कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 है तो क्लास के 60 बच्चों में से कितने बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 1 को ठीक किया। तो स्कोरिंग और रेटिंग फ्रीक्वेंसी हमने ये देखनी है कि ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज कहाँ पे जा रही हैं। 70 से 80 के दरमियान आ रही हैं, 80 से 90 के दरमियान आ रही हैं, 60 से 75 के दरमियान आ रही हैं। तो हमें अपनी फ्रीक्वेंसीज का अंदाज़ा करना है ताकि हम इस चीज़ को देख सकें कि स्टूडेंट्स की परसेंटेज कहाँ पे फॉल कर रही है। और उसके साथ बच्चों के इम्प्रेशंस और अपने परफॉर्मेंस बच्चों की देखनी है कि उनको कैसा लगा पेपर में, उन्हें कौन से इश्यूज थे, वो कौन सी प्रॉब्लम्स थी जो नेक्स्ट पेपर में हमें बच्चों के सामने या उनके लिए वो प्रॉब्लम्स को हमें दूर करना है। लर्न फ्रॉम एंड इम्प्रूव अपॉन टेस्ट कंस्ट्रक्शन आफ्टर ईच एडमिनिस्ट्रेशन। हर पेपर एडमिनिस्टर करने के बाद ट्राई टू रिव्यू इट सो वी कैन इम्प्रूव बिकॉज
जो भी हमारी कंस्ट्रक्शन या रिव्यूज होते हैं, दीज आर फॉर द बेस्ट एंड फॉर नेक्स्ट टाइम, जो भी हमारी इम्प्रूवमेंट्स होती हैं उनके लिए होते हैं, क्योंकि रिव्यूज से हम अपनी वो ड्रॉबैक्स, अपनी लिमिटेशंस और वो चीज़ें जो हमारे डीमेरिट्स के तौर पर चल रही होती हैं, हमारी खामियां होती हैं, उनको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। आइडेंटिफाई व्हाट वर्क वेल एंड व्हाट डिड नॉट। देखें कि आपकी डायरेक्शंस में इशू था, आपके टेस्ट की इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम थी, आपने जो आइटम्स बच्चों को दी उनमें प्रॉब्लम थी, जहां प्रॉब्लम थी उनको सॉल्व आउट करने की कोशिश करें। दिस फीडबैक एंड रिव्यू इज इनवैल्यूएबल इन द टेस्ट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड फॉर फ्यूचर एग्जामिनेशन। वैल्यूएबल है बट फॉर द फ्यूचर, लेकिन अभी के लिए नहीं, क्योंकि जब हमें मौजूदा फीडबैक मिलता है तो उसके बाद हमें रिव्यू लेना होता है। Remember that well-stated test questions connected with clear directions and instructions contribute greatly to the reliability and validity of the test results, and consequently the decisions that are made based on those results. और टेस्ट की रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को हम जज कर सकते हैं, बट उसके साथ अगर आपके टेस्ट की डायरेक्शंस और इंस्ट्रक्शंस क्लियर होंगी तो उससे स्टूडेंट भी उस चीज़ को आसानी के साथ कर सकेंगे और टीचर को बार बार उनको वो चीज़ें बतानी नहीं पड़ेंगी। सो ट्राई टू कि आप जो भी टेस्ट बच्चों को दे रहे हैं उसमें आपकी डायरेक्शंस और जो भी इंस्ट्रक्शंस आप बच्चों को देना चाह रहे हैं वो वेल स्टेटेड होनी चाहिए। Now there are some basic tips for those who are designing a test or who are constructing a test. Create new tests each time you teach a course. अगर आप एक कोर्स हर सेमेस्टर में पढ़ाते हैं तो कोशिश करें कि आप हर सेमेस्टर में उस कोर्स का नया क्वेश्चन और नई आइटम्स जो हैं वो उसमें बनाएं। पुरानी आइटम्स को बार बार रिपीट नहीं करें। अगर आपके पास आइटम बैंक है तो उसके अंदर अपनी आइटम्स को इंक्लूड करते जाएं और उसे हर दफ़ा शफल करके बच्चों को दें। लीव योर सेल्फ टाइम टू राइट द टेस्ट। अपने आप को छोड़ दें उस वक्त तक के लिए बच्चे जब तक टेस्ट दे रहे हैं। क्रिएट अ बैंक ऑफ क्वेश्चंस ड्यूरिंग द टर्म। और जैसे जैसे आप अपने टॉपिक्स क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, अपने उन क्लासेस के बाद या उन क्लासेस से पहले अपना आइटम बैंक बनाएं। बिकॉज जब हम एक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं या अपना टॉपिक प्लान करते हैं तो हम अपनी आउटकम्स को प्लान करते हैं। उन आउटकम्स और ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए हम साथ साथ अपने क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं। पे अटेंशन टू द लेआउट ऑफ द एग्जाम। और हमेशा इस चीज़ को देखेंगे एग्जाम का पैटर्न क्या है और फर्दर उस पैटर्न को किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। Consider the following rules of thumb for how long students typically need to answer different form of questions. 1 time per objective type question. 1 मिनट एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए रखें। जैसे हम बच्चों को एमसीक्यूज देते हैं, 18 मार्क्स के एमसीक्यूज हैं, इट मीन्स कि ऑब्जेक्टिव पेपर करने के लिए बच्चे को नॉट मोर देन 20 मिनट्स दिए जाएं, बल्कि 18 मिनट्स में ही बच्चे से उसका पेपर वापस लिया जाना चाहिए। 2 मिनट्स फॉर अ शॉर्ट आंसर रिक्वायरिंग 1 सेंटेंस। हाँ, अगर शॉर्ट आंसर आपका 1 मिनट है तो उस 1 नंबर का है तो उसके लिए हम बच्चे को सिर्फ 2 मिनट्स देते हैं कि वो उसमें एलेबोरेशन कर दे। 5 to 10 मिनट्स फॉर अ लॉन्गर शॉर्ट आंसर। और जो हमारा 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का है उसके लिए हम बच्चे को 5 से 10 मिनट्स का टाइम देंगे एक शॉर्ट आंसर को कंप्लीट करने के लिए। तो अगर आप एक ऐसा पेपर बना रहे हैं जिसके अंदर आप 10 एमसीक्यूज डाल रहे हैं और 10 फिल इन दी ब्लैंक्स डाल रहे हैं तो आप 10 नंबर रखेंगे एमसीक्यूज के लिए, 10 नंबर रखेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए। और अगर आप उसके अंदर 5 मार्क्स या 10 मार्क्स से शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस डाल रहे हैं तो फिर आप उसके लिए 20 मिनट्स रखेंगे। इस तरह आपके ये 40 मिनट्स हो जाएंगे। और उसके साथ अगर आप फर्दर आप जिस तरह उसके अंदर आइटम्स को पेपर की सैम्पलिंग के दौरान एंटर करते जाएंगे उसके हिसाब से आप पेपर का टाइम डिसाइड करते जाएंगे। 10 मिनट्स फॉर अ प्रॉब्लम दैट वुड टेक 2 मिनट्स टू आंसर। एक ऐसा क्वेश्चन जो कि आप जिसको हम नॉर्मली एप्लीकेशन टाइप कहते हैं या प्रैक्टिकल टाइप कहते हैं या ऐसा जिसमें बच्चे को चीज़ों को सिंथेसाइज करना है, इवेलुएट करना है, इस तरह के पेपर के लिए बच्चे को आप एक क्वेश्चन के लिए 10 मिनट्स दे सकते हैं। 15 मिनट्स फॉर अ शॉर्ट फोकस क्वेश्चन एंड 30 मिनट्स फॉर एन ऐसे फॉर ऑफ मोर देन 1 और 2 पेजेस। ठीक है, अगर हम बच्चे को 5 सवाल दे रहे हैं करने के लिए तो हम उसे 3 घंटे का टाइम देंगे। ठीक है, उसमें हम जो 30 मिनट्स एक्स्ट्रा रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो प्रॉब्लमेटिक है जिसमें बच्चे का टाइम कंज्यूम हो सकता है तो उसको मद्देनजर रख के बच्चे को टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। These are references and you can ask me any question. ये सब चीज़ें मैंने YouTube के चैनल पे भी रखी हुई हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या ये प्ले नहीं हो रहा आपसे तो आप दूसरे फर्दर जो आपके इर्द गिर्द आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे पूछ लें, और जो YouTube का चैनल है आप डायरेक्ट वहाँ से भी इन चीज़ों को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।